Good morning, student. Earlier we have started chapter number 10, circles. In part 1, we have discussed some parts of circle, that about radius, its center, and definition of circle. After then we have also studied sector, line segment, arc, and its chord, and after then its circumference, diameter. These all definition that we have studied. Now let here we are going to introduce some more property of circles. For that, let first understand some properties of circle. After then we let solve or prove some theorem from this chapter. Now let first we are going to introduce here angle subtended by a chord at a point. Now let just take a center O and draw one circle, taking center A and taking radius. Now let, if we here we want to find or we want to define angle subtended by a chord, then we have to draw one chord on this circle. For that we have to take 2 points on this circle. So that let me draw one chord and its end points as P and Q. So here given center O with its chord PQ. Now let we are going to discuss here this angle subtended by a chord. So just we know that OP, if we join O and P, then we know that it is a radius of the given circle, as you can see here. So OP is a radius of given circle, as well as we know that O and Q, if we join O and Q, O is a center and Q is a point at fixed distance on the circle. So if we join O and Q, then it is also a radius of this circle. So yeah, here we have two radii, OP and OQ. So now you can see that if we join these radius, as you can see here in the figure, then you can see that this line segment or chord generated one angle at center O. It makes one angle at center O, POQ. Which one? POQ. And it is an angle subtended by a chord. So it is an angle subtended by chord PQ. So this angle is known as an angle subtended by a chord PQ. So later it is an angle, as you can see here. So this is an angle subtended by a chord at center O. Now let also we can draw angle by this chord PQ by taking point on circle. As you can see here, let me take one point on the circle. Let we say it R. Let join P and R and also R and Q. So here you can see that you can find one angle as here PRQ. You can find such angle here PRQ. So it is also an angle subtended by a chord PQ at the point R. Also in a minor arc, it is we know that it is a major arc, it is a minor arc. We can also take one point on minor arc, such as you can see here. So if we join PS and SQ, so it is a angle PSQ.
subtended by a chord PQ at the point S. So by this way these angles are known as an angle subtended by a chord at the given point. So the things that we have done here, angle POQ subtended by a chord PQ at a center O, as well as angle PRQ subtended by a chord PQ at point R, and angle PSQ subtended by a chord PQ at a point S. So it is about an angle subtended by a chord at a point. Now let first we go for theorem. Just let understand some properties of triangles. Here you can see that if we join these 3 points, then it can be seen as a triangle PQR. It is one triangle. So first let to find some properties of circle with a chord, just we let understand some properties of triangles. That is congruent triangles. Now let congruent triangles क्या होता है कि एक जैसे जो एक रूप जो ट्राइंगल होते हैं उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक रूप ट्राइंगल किसके कह सकते हैं, तो कि जो देखने में एक जैसे हो, जिसकी सभी साइड है वो उसका माप भी उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उसका माप भी एक जैसा हो, और जिसके एंगल होते हैं वो एंगल भी सभी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो दोनों एंगल कैसे ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. फॉर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 2 properties of congruent triangle. So first that we are going to discuss here congruent triangles rules. First rule, SSS rule. First rule is SSS rule, means side rule. अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि दोनों जो ट्राइंगल होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो एज होती है वो करस्पॉन्डिंग एज वो सेम होती है, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं. तो इस तरह के जो दो एक जैसे दिखने में और उसके साइज जो है वो भी दोनों की एक जैसी होती है, तो उसको हम एकरूप ट्राइंगल त्रिकोण और उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी कह सकते हैं. तो उसकी जो 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये थियरम में हम यूज़ करने वाले, तो 2 प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है SSS रूल. अब ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो कुछ थियरम हमें दिए गए होंगे उस थियरम को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें ये जो रूल है वो चाहिए. तो उसको हम SSS रूल है, पहला है साइड रूल. सो उसके पहले हमें 2 ट्राइंगल चाहिए. कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. पहला ट्राइंगल लेते हैं ABC ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पे PQ एंड R. सो अब हम ये जो ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब कह सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब कह सकते हैं, उसका हम SSS रूल है वो यूज़ करके हम उसे कहेंगे. SSS रूल क्या है, तो यहाँ पे जो AB साइड है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, PQ. उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ. तो वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, मीन्स AB इज इक्वल टू PQ. फिर क्या, तो कि BC इसका बेस है, तो यहाँ पे भाई QR इसका बेस है, तो BC इक्वल टू QR होना चाहिए, और AC इज इक्वल टू PR. तो ये दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे. तो उस SSS हो गया ना, साइड हो गया रूल, साइड रूल है. तो इस हिसाब से हम दोनों को एक जैसे दोनों को हम कह सकते हैं. सो लेट फॉर दैट द गिवन ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ. यहाँ पे जो AB है उसका माप और PQ का माप दोनों का कैसा है, एक जैसा है. AB इज इक्वल टू PQ. फिर BC इक्वल टू QR, बेस दोनों का एक जैसा है, दोनों का माप कैसा है, एक जैसा है. और AC इज इक्वल टू PR, मीन्स द गिवन साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स आर सेम टू करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स साइड्स. So here AB is equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR. तो इस तरह से तीनों की तीनों साइड तीनों की साइड जो 3 साइड है, तो इसे हम SSS रूल कहेंगे. कौन सा रूल, SSS रूल कहेंगे.
तो इस तरह से जो हमें यहाँ पे है तीनों साइड एक जैसी मिली, तो हम इसे कह देंगे दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, वो हम कह सकते हैं। सो फॉर गिवन ABC करस्पॉन्डिंग टू PQR, ABC करस्पॉन्डेंस PQR, तो यहाँ पे जो है करस्पॉन्डेंस का मीन्स क्या होता है, तो कि ए जो एंगल ए है वो एंगल P के समान है, मीन्स ये एंगल जो दोनों एक जैसे हैं। फिर एंगल B है वो Q के जैसे समान है, तो B के साथ करस्पॉन्डिंग में पेयर कौन सी है, Q, और C के साथ कौन सा है, R, C के साथ R। और यहाँ पे AB साइड AB करस्पॉन्डिंग साइड PQ, फिर BC साइड करस्पॉन्डिंग QR एंड AC साइड करस्पॉन्डिंग PR। तो इस तरह से हमें, तो यहाँ पे साइड रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, तो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे एक ये जो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल का जो साइन है उस पर इस तरह से ऐसे एक साइन होनी चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट की साइन हो जाएगी। यहाँ पे इक्वल जो है ना साइन, ये इक्वल और उसके पर ऐसी साइन जो होगी उसे हम कॉन्ग्रुएंट साइन कहते हैं। कौन सी साइन, कॉन्ग्रुएंट साइन। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स कैसे है, तो कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, कोई भी उसमें फेरफार नहीं है, उसके सारे तीनों एंगल एक जैसे हैं और तीनों साइड भी एक जैसी है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ABC ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR. So by this way we remember this first rule, SSS rule। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जो थियरम हो गया उस थियरम को हम प्रूव करेंगे, तो इसे हम SSS रूल कहेंगे। अगर दो ऐसे ट्रायंगल दिए गए हो तो उनकी जो तीन साइड एक जैसी हो, तीनों की तीन साइड एक जैसी हो, तो उन्हें हम कह देंगे कि चलो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस हिसाब से उसके एंगल भी कैसे हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, वो भी हो प्रूव हो जाएगा। सो लेट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, SAS रूल। SAS रूल, उसका मीनिंग क्या होता है, साइड एंगल साइड रूल। क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल। याद रखें फिर से, साइड एंगल साइड रूल मीन्स यहाँ पे एक साइड होगी, उसके बाद एंगल आएगा और उसके बाद साइड, मीन्स दो साइड के बीच में क्या है, एंगल। तो ये जो तीन पार्ट्स है ट्रायंगल के, तीन पार्ट्स है वो किसी दूसरे ट्रायंगल के इस तरह के तीन पार्ट्स के साथ मैच हो जाए, सेम हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, दो ट्रायंगल ABC एंड नेक्स्ट वन ट्रायंगल दैट इज, यहाँ पे जो एंगल हम है वो ले लेंगे A, और दैट नेक्स्ट वन दैट इज ट्रायंगल PQ एंड R, और उसमें एक एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल, तो क्या P। तो यहाँ पे हमने पेड़ ले ली। अब तो क्या हमें SAS रूल बनाना है, तो SAS रूल बनाने की एक साइड चाहिए, फिर एक एंगल चाहिए और उसके बाद एक साइड चाहिए, मीन्स इस तरह से साइड, दो साइड और बीच में उसका एक एंगल, दो साइड और बीच में एंगल। तो ये जो रूल हो गया SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो अगर इस ट्रायंगल का ऐसी पेयर है, SAS पेयर है, और वो पेयर है वो करस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल की जो पेयर होती है SN एंगल साइड, मीन्स SAS के साथ मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। और कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे तो दोनों की सारे के सारे माप कैसे, एक जैसे। A के बराबर P हो गया, B के बराबर Q हो गया, C के बराबर R हो जाएगा, AB के बराबर PQ हो जाएगा, BC के बराबर QR और AC के बराबर PR हो जाएगा। तो अब जो SAS है रूल, इसका हिसाब से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। तो लेट प्रूफ, तो उसका प्रूफ कैसे, कि फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी टेक AB इज इक्वल टू PQ, यहाँ पे दिया गया है AB इज इक्वल टू PQ, AB और
ए बी और पी क्यू कैसे सेम है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों एंगल ए एंड पी है दोनों भी एक जैसे हैं, और तीसरा तो कि ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर मीन्स यहाँ पे 3 पार्ट्स, कितने 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, ए बी वन साइड एंगल ए एंड एंगल पी एंगल एंड साइड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पे 3 पार्ट से हमने इक्वल कर दिए, तो ए कैसे हो गए कैंग्रुएंट एंगल हो गए। सो फॉर द गिवन ए बी सी करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें यहाँ जो पेयर दी गई है तो ए बी सी करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर, तो उस हिसाब से हमें ये जो दोनों एंगल हैं वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की जो साइन है ना वो इस तरह से लिखनी है, इस तरह से लिखनी है, इक्वल के ऊपर इस तरह का एक जिगजैग साइन है वो आपको लिखना है। तो इस तरह से उसको हम ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, वो रूल कौन सा होगा एस ए एस रूल, क्योंकि उसके साइड एंगल और साइड है वो एक जैसे हो जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, हम 2 ट्राइंगल लेते हैं, वी टेक 2 ट्राइंगल एंड वी कंपेयर 3 पार्ट्स, ओनली 3 पार्ट्स, हाउ मेनी टाइम मिनिमम 3 पार्ट्स, we just compare only 3 parts and we say that both the triangle are congruent triangle. So for that is one rule that we remember, that if there is given 3 parts is corresponding to another triangle and its 3 parts, then both the triangles are known as a congruent triangle. So for that we just remember one rule, and it is a CPCT rule. Which one rule? CPCT rule. CPCT rule means corresponding parts of congruent triangle. फिर से रिपीट करते हैं, CPCT rule means corresponding, P का means parts of, C का means congruent triangles, means अगर 2 दिए गए ट्रायंगल्स में कोई भी 3, एक ट्रायंगल से कोई भी 3 पार्ट से वो दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट के साथ मैच हो जाता है, तो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं और दोनों एक जैसे होंगे, और सारे के सारे उसके पार्ट्स भी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। सो दैट वी हैव 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो 2 ट्रायंगल है। तो CPCT रूल क्या कहता है, फॉर गिवन 2 triangles, for given 2 triangles if any 3 parts कौन से हो सकते हैं, एंगल्स और साइड, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती है, तो उनमें से कोई भी 3 पेयर, एक एंगल ले लो, 2 साइड ले लो, 2 साइड ले लो, एक एंगल ले लो, 2 एंगल ले लो, एक साइड ले लो, 2 साइड लो, एक एंगल लो, और 3 साइड लो और 3 एंगल लो। तो जो है एक एंगल वाला नहीं हम कंसिडर करेंगे, 3 एंगल कंसिडर नहीं करेंगे कभी भी, याद रखिए एंगल कभी कंसिडर हम नहीं करें, जो 3 एंगल है उसको हम कंसिडर नहीं करें। बाकी की कोई भी पेयर होगी हम लेंगे, 3 साइड ले सकते हैं, एक एंगल 2 साइड ले सकते हैं, 2 एंगल एक साइड ले सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी पेयर लो। देन इफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू एनी 3 पार्ट्स, if any 3 parts of one triangle are equal to any 3 parts of corresponding triangle, then given 2 triangles are congruent triangles. means अगर कोई भी 3 parts आप ले लो, यहाँ पे 2 एंगल ले लो A एंड B, एंड उसके बीच में जो साइड आती है उसको साइड को ले लो, तो A इज इक्वल टू P, AB is equal to PQ and angle B is equal to angle Q, then these 2 triangles are known as a congruent triangle. Then we can say that is triangle ABC equal to congruent to triangle PQR. What can we say that? For therefore triangle ABC congruent triangle PQR. तो इन दोनों को तो याद रखना है, अगर कोई भी 3 पार्ट्स 3 एंगल्स नहीं लेने, एक साथ 3 एंगल्स नहीं लेने, याद रखो ए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर नहीं लेना है। उसके अलावा कोई भी पेयर ले सकते हो आप, 2 साइड एक एंगल, 2 एंगल एक साइड, कोई भी ले सकते हो, लेकिन
3 एंगल लेने नहीं है, 3 साइड भी ले सकते हो लेकिन 3 एंगल नहीं लेने। तो इसको हम इस हिसाब से हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट एक जैसे एंगल बता सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रूल है, SSS रूल, साइड 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 रूल, एंड SAS रूल, दैट इज साइड एंगल साइड रूल को हम के हिसाब से हम थियरम प्रूव करेंगे। तो लेट टेक वन थियरम, थियरम नंबर 10.1, theorem number 10.1 we are going to discuss properties of circle and with its chords and subtended angle by chords. So theorem 10.1 says that, क्या कहता है, equal chords in any circle, there are 2 equal chords, here given chords AB and CD, equal chords of a circle subtend इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या करते हैं कि 2 इक्वल कॉर्ड्स होती है, वो एंगल जो यहाँ पे उसका सेंटर है वहाँ पे एक जैसे इक्वल है वो बनाते हैं। तो वो हमें प्रूव करना है कि ये बात सच है या गलत है। सो थियरम 10.1 दैट वी ऑलवेज रिमेंबर, 10.1 क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मीन्स ये जो एंगल बनाते हैं यहाँ पे वो दोनों एक जैसे ही, मीन्स AOB एंड COD दोनों कैसे एक जैसे एंगल है, वो हमें प्रूव करना है। दैट फॉर प्रूफ यू आर गिवन 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें दी ही गया है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हमें दी गई, तो हम लेके यहाँ सर्कल एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से, 2 इक्वल कॉर्ड्स लेंगे और उसके हिसाब से 2 यहाँ पे ऐसे एंगल यहाँ पे उस पर सबटेंड करेंगे। कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, यू वांट टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। वी वांट टू प्रूव दिस बोथ एंगल आर इक्वल, दैट वी वांट टू प्रूव सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पे दोनों इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेट इन ट्राइंगल्स, आप देख सकते हैं ट्राइंगल हो गया ना, AOB एंड COD दोनों एक ट्राइंगल जैसे दिखते हैं। इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। चलो बताओगे कि OA और OC जो यहाँ पे है वो दोनों इक्वल क्यों दिए गए हैं? बिकॉज OA एंड OC आर रेडी ऑफ दिस सर्कल, और सर्कल की सभी रेडी कैसे होती है, एक जैसी। तो OA इज इक्वल टू OC रेडी ऑफ अ सर्कल, एंड ऑल्सो OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, दोनों एक जैसे रेडी ऑफ अ सर्कल, दोनों एक जैसे हो गया। और AB इज इक्वल टू CD वो तो हमें दिया गया है ना, क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, तो AB इज इक्वल टू CD गिवन। तो यहाँ पे कौन सा रूल बन गया, साइड साइड साइड, SSS रूल, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, दोनों ट्रायंगल्स कैसे एक जैसे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD हो गया ना, दैट इज SSS रूल। मीन्स ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो उनके सारे के सारे पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल। मीन्स कॉर्नर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, therefore angle O is equal to angle O, that is angle AOB equal to angle OCD, therefore this gives angle AOB is equal to COD, that we wanted to prove। and we all can also use corresponding parts of congruent triangle, और सब हम CPCT रूल कहते हैं, क्योंकि CPCT रूल क्या कहते हैं कि जो अगर 3 पार्ट्स एक जैसे हो तो दोनों ट्रायंगल के सभी पार्ट्स कैसे होंगे, एक जैसे हो सकते हैं। ये जो है CPCT रूल होता है। तो इस हिसाब से थियरम नंबर 10.1 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ लेट वी डिस्कस इट्स कन्वर्स पार्ट, थियरम 10.2। वी आर गोइंग टू डिस्कस थियरम 10.2 एंड इट इज converse part of this, means there is given 2 equal angle subtended at its center by 2 chords, then we want to prove that given chords are equal, its converse part, that is theorem number 10.2। if the angles subtended by the chords, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, at the center are equal, कैसे है, दोनों एक जैसे हैं, then chords are equal, means then के बाद जो है वो हमें प्रूव करना होता है।
इफ से लेके देन तक जो दिया गया होता है वो हमें जो चीज़ है वो दी गई होती है, और देन के बाद जो होगा वो हमें प्रूव करना है। देन द कोड्स आर इक्वल मीन्स यहाँ पे हमें कोड्स जो है उसे इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए प्रूफ चाहिए हमें। तो प्रूफ के लिए पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा दो ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है कि एक तो सर्कल में जो दोनों कोड्स है वो इक्वल नहीं है, इक्वल हमें प्रूव करनी है। मानो कि दोनों कोड्स ए बी एंड सी डी है वो इक्वल नहीं, लेकिन जो एंगल है ए ओ बी एंड सी ओ डी वो इक्वल है, वो इसमें कहा गया है। सो वी वांट टू प्रूव द गिवन कोड्स ए एंड बी ए बी एंड सी डी आर इक्वल। फॉर दैट लेट गिवन दैट you are given that what given angle AOB is equal to angle COD and it is a subtended angle at center by the chord AB and CD respectively। तो ये तो दिया ही गया है। So now in the given triangles AOB and COD OA is equal to OC, OA is equal to OC, ओ ए और ओ सी दोनों है इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडी है, और रेडियस सबकी कैसी होती है? एक जैसी। फिर तो एक दूसरा दिया गया है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, जो हमें दिया गया है, जो यहाँ पे थियरम है उसमें ही दिया गया है, स्टेटमेंट में दिया गया है। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्या है? तो कि दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस एक जैसी होती है, तो के ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ पे देखो तीन पार्ट्स एक जैसे हो गए ना, एक साइड, एक एंगल, एक साइड, मीन्स ये कौन सा रूल होगा? एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल के हिसाब से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी। देन दिस गिव्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों मिला हमें? क्योंकि सीपीसीटी रूल, फिर हम सीपीसीटी रूल लगा देंगे, क्योंकि सीपीसीटी रूल क्या कहते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के तीन पार्ट्स एक जैसे हो जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स एक जैसे होंगे। तो सीपीसीटी रूल के हिसाब से ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से अगर कोई ऐसे ट्राइंगल, कोई ऐसी चीज़ दी गई हो कि तो उसमें तीन पार्ट्स हम इक्वल दिखा दें तो सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ये सीपीसीटी रूल कहता है। तो इस हिसाब से आप होमवर्क में जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें आपको ये जो दो एग्जांपल है वो दिए गए। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी। पहले क्या, दो ऐसे सर्कल लेने हैं और दोनों की रेडियस कैसी है? सेम है, तो उसको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये जो थियरम 10 पॉइंट हमने किया है ना उस जैसा ही, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, दो अलग से सर्कल लेने हैं और यहाँ दोनों की रेडियस एक जैसी है, ओ ए एंड यहाँ पे ओ सी। तो यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे ओ डी। तो ये जो इक्वल कोड्स है वो यहाँ पे इक्वल एंगल है वो बनाते हैं, वो आपको प्रूव करना है, कुछ नहीं। उसमें क्या था कि दोनों में अलग अलग एक ही से सर्कल था और उसमें जो है एक ही सर्कल में दोनों हमने एंगल ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो आपको ये साबित करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है कि दोनों की रेडियस एक जैसी है, मीन्स इट इज इक्वल टू दिस। सो ये सभी की सभी एक जैसी है। तो हमें आपको जो थियरम नंबर 10.1 है उसके हिसाब से आप उसे प्रूव कर सकते हो। एंड अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट दैट सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। जो थियरम नंबर 10.2 है उस हिसाब से आप उसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में होमवर्क में एक्सरसाइज 10.2 में जो दोनों के दोनों एग्जाम्पल है वो आप खुद से कर सकते हो। सो डू इट बाय योर सेल्फ एंड इफ आफ्टर इट you can't understand then you can call me, okay, and after then we discuss it about it